all to this session of Pseudocom. We have with us with Ms. Shivangi Pathak as the speaker and the guest of honor at today's session. She is a perfect example of the fact that women can overcome all obstacles in life and can achieve incredible things. She is an Indian mountaineer born in Hisar, Haryana in 2002. At the mere age of 16, she became India's youngest person to climb world's highest peak, Mount Everest, in 2018 from the Nepal side. She has even climbed Russia's highest peak, Mount Elbrus, in Europe, and the highest peak of Africa, Mount Kilimanjaro, in 2018. Before attempting Mount Everest, Pathak conquered Stok Khangri, a 6,053-meter peak in Ladakh, which has similar challenging conditions. During their descent from the Everest, she even collected all the garbage left behind by other mountaineers that earned further praise and love for her from the country. She was honored with Bal Shakti Puraskar 2019 by Honorable President Sri Ramnath Kovind ji in 2019 January. Or as Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called Shivangi's speech stupendous while he congratulated her on Twitter. She has set a perfect example that nothing can stop women in doing whatever she wants on her own will and courage. With this, I would like Shivangi ji to take the session further and set a contemporary view on breaking the stereotypes against women and motivating others. Okay. Hi everyone. Jai Hind, all of you. And thanks for the lovely introduction of mine. Thank you so much. And first of all, very good morning to all of you. So, of course, they have given my introduction. My name is Shivangi. And yeah, I submitted Mount Everest at just age of 16. Yet I am 19. I just touched 19 in this July. So it's been 2 years almost that I submitted Mount Everest, because I submitted Mount Everest on 16 May 2018. So today I'm here with you on your screen, guys, for share my journey, my all, I must say, hard work that I did in my childhood. So, okay, I'll start with from the beginning. Like, everyone wanted to know that how I started my Mount Everest journey, and सबसे मेन जो चीज जो सब लोग पूछना चाहते हैं, that was कि मेरे माइंड में ये चीज आई कैसे उस एज में. So okay, I was just 13 and a half, I think, yeah, and I was with my mummy and went for a seminar, and वहाँ पर एक्चुअली ना आई वॉज वेरी फूडी, इवन आई एम, बट नाउ आई नो कि कैसे कंट्रोल करना है. बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन मुझे अभी कंट्रोल करना आ गया, बट उस वक्त ऐसा नहीं था. आई वॉज सो फूडी एंड मैं मेरी मम्मा साथ बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी. आई एम नॉट काइंड इंट्रोवर्ट पर्सन, बट स्टिल मुझे अपना रूम में बैठना ज्यादा बेहतर लगता है, बिकॉज यहाँ पर अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं. सो मैं मेरी मम्मा साथ सेमिनार में गई. उन्होंने मुझे बोला कि वहां पर बहुत टेस्टी खाना मिलेगा और मीठा भी मिलेगा, एंड आई वाज लाइक मीठा मिलेगा, चलो चलो चलो. सो दैट वाज द डे कि उस मीठे और खाने के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ पलट गई थी. जब मैं उस सेमिनार में गई तो एक वीडियो चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था, दे एक्सप्लेन कि व्हाट इज माउंटेनियरिंग, व्हाट इज एडवेंचर लाइफ, एंड लोग क्यों इसकी तरफ बढ़ते हैं या फिर क्यों बढ़ना चाहते हैं और बढ़ना क्यों चाहिए. तो इन सब चीजों को डिस्क्राइब कर रहे थे वो लोग. And that was the, even I felt it, that was the first ever time that I was that type of serious in my life. It's like कि मैं इतना इंटरेस्ट से भी किसी चीज को सुन सकती हूँ, मुझे भी नहीं यकीन था. बस I was like totally एक बच्चा टाइप की गर्ल, ठीक है, जिसमें कोई भी मतलब किसी भी चीज को लेकर जो सीरियस नहीं होती थी, हर चीज को मजाक में लेना, काइंड ऑफ गर्ल आई वाज, ठीक है. सो जब मैं उस चीज को इतने इंटरेस्ट से देख रही थी तो माय मदर वाज लाइक कि बेटा इतना मजा आ रहा है देखने में, एंड आई सेड यस, मुझे बहुत एंजॉय आ रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, काश मैं भी ये कर पाती. एंड शी सेड कि अगर इतना ही मजा आ रहा है तो बेटा तू भी माउंट एवरेस्ट चढ़ जा. दैट वाज द टाइम कि मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया. मतलब मैं पहुंच गई उस वक्त माउंट एवरेस्ट पर, मैं देख लिया वो क्या है,
जबकि मुझे नहीं पता था वो क्या है। वो सपना था जो मम्मी ने मुझे बोली, वो मजाक में बात, उसको मैंने बैठे बैठे 2 मिनट में ही ना पूरा कर दिया था अपने मन में। तो सपना वही होता है ना जो आप मतलब अपने दिमाग में ठान लो, तो उस वक्त मैंने ठान लिया। उससे पहले जैसे कि मैं जब 9th क्लास में थी तो मेरे भैया ने एक नया स्मार्टफोन खरीदा, एंड ही स्टार्टिंग समथिंग सर्च ऑन द गूगल, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज गूगल। एंड इस पे ऐसा, इसमें इतना कौन ज्ञानी है जिसपे सब मिलता है। एंड ही सेड कि दिस इज गूगल, आपको यहाँ पूरी दुनिया मिलती है। आई टुक द फोन एंड बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम जब मैं सर टाइप कर रही थी, तो बहुत स्लो स्लो मैं उस पे टाइप कर रही थी, शिवांगी पाठक। आई टाइप्ड शिवांगी पाठक एंड आई गॉट नथिंग। एंड आई वाज लाइक, आई आस्क्ड माय मम्मा कि मम्मा, लाइक आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, क्या मैं इस दुनिया में नहीं आती? और मेरा क्या, मैं कौन हूँ? मैं, गूगल को तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब गूगल को कुछ भी नहीं पता। बिकॉज आई वॉज इन द 9th स्टैंडर्ड और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी हो क्या रहा है। बट मेरे में काफी क्यूरियोसिटी थी उस वक्त जानने की। देन माय मदर टोल्ड मी, शी एक्सप्लेन मी कि बेटा, गूगल पर वो लोग आते हैं जो अपने नाम से अपनी पहचान बनाते हैं अपने देश के लिए। हम बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए जब ऐसी बातें करते हैं ना, अपने देश के लिए अपना नाम रोशन करते हैं, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, वो बच्चे आते हैं गूगल पर। एंड लाइक ना, ऐसा था कि अभी तो मुझे गूगल पर आना है भाई, मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है, मुझे सब करना है। एंड आई बिलोंग टू हरियाणा, हिसार। तो हरियाणा में अक्सर सुना जाता है, नॉट इन हरियाणा, इंडिया में अक्सर सुना जाता है कि बेटियां नहीं बाहर निकलनी चाहिए और उन्हें चोला चूका आना चाहिए अच्छे से, और उनको घर के काम काज आने चाहिए। बाहर निकलना, स्पोर्ट्स में जॉब करना, ये सब लड़कियों के लिए नहीं बना है। ये बात मैं आज से नहीं, ये मैं बात बचपन से सुन रही हूँ। उस वक्त समझ नहीं थी बट आज समझ है। तो फिर ये भी रहता था कि बेटियों के लिए भी कुछ करना है यार, अपने लिए कुछ करना है और दिखा देना है कि कम नहीं होती हम लोग। बस यही हमेशा सोच रहती थी मेरी। और जो वो माउंट एवरेस्ट वाली बात स्टक करी, तो ऐसा हो गया कि अब हो जाएगा, यही चाहिए था मुझे। एंड आफ्टर 2 or 3 days आई अगेन आस्क्ड टू माय मम्मा कि मम्मी वो माउंट एवरेस्ट कभी जा रहे हैं आप लोग? एंड माय मदर शी लाफ्ड अ लिटिल एंड उन्हें शी फेल्ट कि या आई वाज सीरियस। और उन्हें लगा कि अभी शायद कुछ ना कुछ करना चाहिए, अगर बच्ची इंटरेस्ट से किसी चीज को कर रही है तो हमें इसको रोकना नहीं चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। बट उस वक्त उन्होंने पूरा इस पे काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब मैंने 10th पास आउट की, तो 11th क्लास में तो अभी तो मुझे माउंट एवरेस्ट जाना था बस। तो बिकॉज आई वॉज फूडी, सो ये तो सेंस है कि मैं बहुत मोटी भी थी। तो सबसे पहले जो मेरी मुझे करना था वो थी फिजिकल फिटनेस। और उससे पहले की एक चीज थी, वो था मेरा डर। क्या मैं डरती हूँ किसी चीज से? क्या मुझे पहाड़ों पे डर लगेगा? लाइक आइदर आई हैड द एक्रोफोबिया, मुझे इस बात का पता करना था। अब ये कैसे पता करेंगे, हम तो हरियाणा से हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी, मतलब मैं क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं हरियाणा के आज भी जिन्होंने पहाड़ों को अपनी नजरों से देखा भी नहीं है। वो दिखते कैसे हैं? सिर्फ उन्होंने टीवी में देखा है, फोन में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों को नहीं देखा है। मैं भी उनमें से ही एक थी। मुझे नहीं पता था पहाड़ क्या होते हैं। फिर मेरे पापा ने आइडिया दिया कि अब इसका डर के बारे में तो ये करना चाहिए। उन्होंने मुझे 13.5 साल की उम्र में लगभग बंजी जंपिंग के लिए भेज दिया, जो कि मुझे अलाउड नहीं की गई। लेकिन जब हमने वहां के ओनर से बात किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट के लिए, मैंने, मेरी जो सोच है वो है माउंट एवरेस्ट, तो ये बंजी जंपिंग तो सिर्फ एक जंप है मेरे लिए और मुझे ये करने की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे परमिशन दी वहां पर। एंड फाइनली आई डिड बंजी जंपिंग। सो यहाँ पर तो और मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा पहाड़ों में अपना सारा डर निकाल दे, चीख जितना चीख सकती है, लेकिन यहाँ इतना चीख ले कि आगे जाकर कभी जिंदगी में चीखना ना निकले पहाड़ों को देखकर कि मुझे डर लग रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अभी तूने जब सपना एवरेस्ट का लिया है ना, तो सोच भी उसके जितनी रखनी है। तो यही हुआ। मैंने जब बंजी जंपिंग करी, तो जैसे ही मैंने जंप किया 83 मीटर की फीट की हाइट से, 83 फीट की हाइट से मैंने जंप किया, नहीं दैट वाज मीटर, सॉरी। तो वहां पर मुझे क्या, मैं बहुत कूल हूँ, मैंने जंप कर दिया, बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन जब मैं ऊपर आती हूँ 1 किलोमीटर का ट्रैक करके, मैं देखती हूँ मेरी मम्मी का हाथ कांप रहा है अभी तक,
और उन्होंने हाथ में कॉफी ले रखी है, उनका बीपी लो हो चुका है, उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि मैं कर लूंगी, बट मेरे पापा को पूरा मुझ पे विश्वास था, क्योंकि वो जब किसी चीज से नहीं डरते तो मैं उनकी बेटी होने पर कैसे किसी चीज से डर सकती हूँ। और उसके बाद जब मैंने खुद में मुझे विश्वास आया कि हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, फियरलेस गर्ल हूँ मैं, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, एवरेस्ट भी कर सकती हूँ। मैंने इस चीज को अपने दिमाग में बुरी तरह बैठा रखा था, मुझे नहीं याद आता कि मुझे कभी भी ख्याल आया हो कि मैं एवरेस्ट नहीं कर पाऊंगी, ये मुश्किल काम है जो मैं करने जा रही हूँ, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सब चीजें मैं नहीं सोचती थी। मुझे तो ये था कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है। और जब आप किसी चीज में विश्वास कर लेते हैं तो भगवान भी नीचे आ जाते हैं आपका साथ देने। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इतनी मुझे ब्लेसिंग्स मिली, सब मुझे, मेरी फैमिली की, आप सबकी, कि वो हुआ। अभी अप्रैल 2017 जब मैं कश्मीर की वादियों में पहुंची फाइनली, अपना ऑलमोस्ट 20 kg मैंने वेट लूज किया, काफी लंबे मेरे बाल थे, एंड मैं स्कूल की वो लड़की थी जिसके बालों की हेयर स्टाइल को, जिसके हेयर के स्टाइल्स को टीचर्स फॉलो करती थी। मुझे इतना शौक था मेरे बालों का, और शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन आज भी मेरे पास मेरे बाल रखे हैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में, मेरी अलमीरा के सामने टंगे हैं। आज भी जब भी मैं डिसअपॉइंट होती हूँ, मैं जब भी परेशान होती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत थक गई हूँ मैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, जो हमें समझ लेना चाहिए, जिनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं उन्हें हाथ में उठाती हूँ और सोचती हूँ कि ये था सेक्रीफाइस, इसे नहीं जाने देना बेकार, इसे मरते दम तक बेकार नहीं जाने देना। बाल बेशक फिर आ जाएंगे, लेकिन एक बार जो ये मैंने किया था ना, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। मेरा डर, मेरा पेशेंस लेवल, मेरा विल पावर, मेरा कंट्रोल, सब कुछ उनमें है, क्योंकि जब मैं उनका सेक्रीफाइस कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी अप्रैल 2017 में मैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने पहुंचती हूँ कश्मीर में, पहलगाम। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जगह है जहाँ पर मैंने माउंटेनिंग कोर्स किया था अपना, एंड आई गॉट अल्फा ग्रेड बिकॉज मैं फिजिकली काफी फिट होके गई थी। और जहाँ पर 14 किलोमीटर की रनिंग होती थी कंटिन्यू, एंड जहाँ पर आपको पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करना होता था, कभी रोप से तो कभी विदाउट रोप, कितनी बार आप गिर जाते थे, कितनी बार आप खुद उठते थे, ये सब सीखते सीखते मैंने अल्फा ग्रेड लिया। आई वाज सो हैप्पी। वहां पर एक इंस्ट्रक्टर थे मेरे, जो कि मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे पूरे कोर्स में, और मैं हमेशा सोचती थी ये चाहते ही नहीं मैं कुछ अपनी लाइफ में करूं, लेकिन वहां मैं गलत थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं वापस आई माउंट इसका बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करके, तो मेरे इंस्ट्रक्टर का मेरी मम्मी पास कॉल जाता है और वो बोलते हैं कि शिवांगी जैसी स्टूडेंट हमें आज तक नहीं दिखी। इतनी कम उम्र में जब वो इतना ऊंचा सोच सकती है, और जो उसकी फिजिकल फिटनेस है उससे ज्यादा जो उसकी मेंटली फिटनेस है वो किसी बच्चे में नहीं है। हमें तो यकीन नहीं होता कि वो हरियाणा में कैसे हो गई, वो तो बनी पहाड़ों के लिए। और जो ये वर्ड्स थे सर के, वो सारा मेरा चेंज हो गया। जो गुरु होते हैं वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपको और ऊंचा भेजना चाहते हैं, अपने से भी ऊंचा। सिर्फ गुरु और माँ बाप ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो आपको अपने से ऊंचा देखना चाहते हैं। तो यही चीज मैंने उन गुरु से सीखी, और मुझे समझ आई कि कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। फिर मैंने अल्फा ग्रेड लेने के बाद एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, एंड आई गॉट अल्फा ग्रेड अगेन। वहां पर मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, और अल्फा ग्रेड जब मैंने एडवांस कोर्स में लिया, ये काफी बड़ी बात थी मेरे लिए। और इट वाज नॉट प्राउड, नॉट ईगो एक्चुअली, बट या आई फेल्ट प्राउड ऑन मी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे में है वो चीज। तो जहां पर आप देख रहे हो कि 20-20, 25-25 साल के जो क्लाइंबर्स, जो कि मेट्स आपके साथ हैं, वो उस चीज को नहीं कर पा रहे और आप कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर द एलाइड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप में आप गॉड फेवरेट चिल्ड्रन हो, मतलब है आपके पास वो गॉड की ब्लेसिंग जो शायद कईयों के पास नहीं है, और उससे ज्यादा आपके पास हिम्मत है हार्डवर्क करने की। मैं हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करती थी, खूब अप्रिशिएट, क्योंकि माउंटेनिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर ताली बजाने वाला कोई नहीं होता। जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना होता है, और आप खुद ही हैं जो अपने आप को डिमोटिवेट कर वापस आ सकते हैं। लेकिन
उस वक्त मैंने सीख ली थी ये चीज कि पहाड़ों में ताली बजाने वाला तो कोई होगा नहीं, मुझे खुद ही अपने आप के लिए ताली बजानी है, खुद ही अपनी कमर पे थपकी देनी है कि हाँ शिवांगी तू ये कर सकती है। तो ये पहाड़ों की बात नहीं है, ये हमारी लाइफ की बात है। हमारी लाइफ में भी कोई हमें अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करना है, खुद से प्यार करना है और आगे बढ़ाना है खुद को कैसे भी करके। अगर भीड़ है तो उसे हटा देनी है अपने आगे से, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। तो फाइनली मैंने अल्फा ग्रेड लिया। अभी मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कुछ सीखती जा रही हूँ, लेकिन अभी बहुत कम था, माउंट एवरेस्ट के लिए बहुत कम थी वो चीज। मैंने और भी कोर्स किया, एक और एडवांस कोर्स किया HMI से, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से, जो कि सिक्किम में है। फिर कुछ ट्रैकिंग्स की, कुछ पहाड़ों को अपने कदमों से नापा, और हाइकिंग्स की, जैसे कि मैं शिव जी की मतलब बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, तो मैंने रुद्रनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब शिव जी का तो कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं, मुझे तो मिलना था उनके, हर हर जगह मिलना था मुझे उनसे, ऐसा था मेरा तो ये सब ट्रैकिंग्स की मैंने। और उसके बाद अभी मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अभी मेरे में है वो चीज। तो मैंने अपना रिज्यूमे बना के अपनी जगह को भेजा, और फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया एक कंपनी के थ्रू। क्योंकि मेरी एज छोटी थी तो हर कंपनी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आई वाज अंडर 18 ऑफ कोर्स। तो लेकिन एक कंपनी थी जिन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने इंश्योरेंस करवाए मेरे कम से कम 6-7 पता नहीं उन्होंने फालतू में हमारे पैसे लगवाए हैं मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होने वाला तो उसके बाद फाइनली 6 ऑफ अप्रैल जो मेरा दिन था, वो मुझे बेस कैंप के लिए मूव ऑन करना था। एंड 1 ऑफ अप्रैल को मैं काठमांडू पहुंच गई अपने पेरेंट्स के साथ। अब इस बीच में मैंने आपको अपने हार्डवर्क के बारे में तो बताया, लेकिन मेरा हार्डवर्क तो जीरो था, मतलब कुछ भी नहीं था। मुझे तो करना ही था ना खुद के लिए, मेरी लाइफ है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का, मेरे छोटे से लेकर बड़े जितने भी फैमिली मेंबर है, सबका उसके अंदर जो रोल था ना, दैट वाज लाइक आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है उनके रोल को बताने के लिए। मेरी मम्मा जब वो, मैं कश्मीर जाती थी, वो मुझे छोड़ने जाती थी, और मैं रो रही होती थी खड़े होके कि मेरी मम्मी मुझसे दूर जा रही है, अभी नेटवर्क नहीं आने वाला है, सिग्नल नहीं पकड़ेगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगी अपनी फैमिली से। लेकिन उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होता था। और वो चीज माउंट एवरेस्ट से चढ़ने से भी मुश्किल है। एक माँ अपने बच्चे से दूर होते हुए अपनी आंखों में आंसू ना लाए, इससे बड़ी चीज तो नहीं हो सकती। वहां से मुझे हमेशा से इंस्पिरेशन मिली है, मुझे हमेशा से एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मेरी मम्मा से मिला। मेरे पापा जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा, और जब मैं कहती गई मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, तो उन्होंने, क्योंकि जो पापा होते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, डैड होते हैं, उनका एक ही फर्ज होता है कि हमें लाइक, ठीक है ये बात सब बोलते हैं बट ये बात सच है कि वो हमारे ATM होते हैं, तो उन्होंने तो पैसा लगाना होता है हमारे ऊपर। तो यही हुआ, उन्होंने जहां मैंने कहा वहां पर उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मैंने उन्हें विश्वास दिलाया और उन्होंने मुझ पर पैसा लगाया। कभी भी मुझे नहीं रोका किसी चीज के लिए। जहां रोका वहां मैंने उन्हें फिर से विश्वास दिलाया कि नहीं पापा, मैं गलत काम नहीं करने जा रही हूँ, मुझे तो अपने देश का नाम रोशन करना है। मुझे, जैसे आप बोल रहे हो ना कि बेटियां, तू बेटी है, तू लड़की है, तुझे अपनी हद में रहना है, मुझे अपनी हद पार कर देनी है पापा, मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छू देना है। तो उसके बाद मेरी दादी, इतनी बुजुर्ग हैं वो, हर पूरी सोसाइटी में रहती हैं, बट फिर भी उन्होंने मुझे अलाउ किया। अगर दादी मना कर देती तो किसी की हिम्मत भी ना होती मुझे बाहर भेजने की। मेरी चाची, जब मेरी मम्मी पापा इतना सब एफर्ट्स कर रहे थे, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उन्होंने पूरे घर को संभाला। मेरे छोटे भाई बहन, मैं अगर आपको माउंट एवरेस्ट की जर्नी एक्सप्लेन करूं, एक ऐसा मेरे साथ किस्सा हुआ था माउंट एवरेस्ट पर कि मेरी वॉकी टॉकी गुम हो जाने के कारण सबको खबर मिली कि आई वॉज नो मोर, मैं मिस हो गई हूँ। किसी को मतलब खबर ये मिल गई कि हो गया मेरा काम निपट ली मैं बट आई वॉज टू गुड, एंड मैं तो क्लाइंब करे जा रही थी। मेरे देश का तिरंगा मेरे हाथ में था और मुझे उसे फहराना था। मुझे एक वीडियो बनानी थी जिसमें मुझे बोलना था कि बेटियां चाहे तो सब कर सकती है, मैं एक बेटी हूँ, और मैं टॉप पे खड़ी होकर ये बात बोल रही हूँ आपको दावे के साथ, ठीक है। मैं इतनी कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन किसी को नीचे खबर पहुंची कि आई वॉज नो मोर बिकॉज आई लॉस्ट माई वॉकी टॉकी। उस वक्त पे मेरे भाई बहनों ने लगातार 108 हनुमान चालीसा पढ़े हैं। मतलब ये भक्ति वाली बात है ही है, बिकॉज आई एम ब्राह्मण, एंड
लाइक मैं पाठक हूँ, तो हम तो इतना ज्यादा मतलब एक बिलीवर हूँ मैं, हर चीज में बिलीव है मुझे भूतों से लेकर भगवान तक में हर एक में बिलीव है। तो मेरे भाई बहनों ने जिनको पढ़ना भी नहीं आता होगा शायद, जो कि उस वक्त एक 7th क्लास में और एक 6th क्लास में थे, उन्होंने भी 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी कि हमारी दीदी के साथ जो वो अच्छा हो। तो ये मेरी फैमिली का सपोर्ट और सेक्रीफाइस था मेरे लिए। तो इस बीच में क्या था ना, हम बिकॉज मैंने बताया मेरे 4 भाई बहन हैं, जॉइंट फैमिली से मैं, मेरी मम्मा ने जिस दिन मैं कोर्स करने गई उस दिन बोला कि आज के बाद मैं तेरे को गले नहीं लगाऊंगी, मैं तेरे को उस दिन तसल्ली से गले लगाऊंगी जिस दिन तू अपना सपना पूरा कर लेगी, और मुझे तेरा सपना तेरी आंखों में दिखता है। तो उस दिन लाइक उन्होंने मुझे गले लगाना छोड़ा। मैं देखती थी डेली रात को मेरी मम्मी सुलाती है मेरे भाई बहनों को, जबकि प्रैक्टिस मैं करती हूँ, थकती मैं हूँ, कमर मेरी दर्द कर रही होती है, लेकिन प्यार उनको मिल रहा होता है। ऐसे दिल दुखता था ना तब ना मेरा जुनून और जागता था, ऐसे माउंट एवरेस्ट कर देना, मैंने गले लगना है मुझे आके मम्मी के तो 6 अप्रैल को जब वो मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे पापा की आंखों में आंसू है, लेकिन खुशी की है कि मेरी बेटी इतना बड़ा काम करने जा रही है। एक जगह उन्हें था कहीं ना कहीं कि वो मुझसे दूर जा रही है काफी टाइम के लिए, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि इतनी वीडियोस देखते थे वो लोग यूट्यूब पर, क्या माउंट एवरेस्ट पर मौत हो सकती है ये चीजें वो सर्च करते थे मतलब पेरेंट्स का माइंड होता है भाई ऐसा, ठीक है, वो बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने बच्चों के लेकर, इतना ज्यादा प्यार जो करते हैं। तो मेरे पापा की आंखों में आंसू, लेकिन मैंने देखा मेरी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं, एंड आई वाज लाइक यार कितनी पत्थर दिल माँ है कभी तो गले लग ले, अभी लग लो मम्मी, पता नहीं क्या हो जाए मेरे साथ, मैं डरा रही हूँ नहीं मम्मी, कुछ भी हो सकता है मैं निपट लूं, गले लग लो मेरे एक बार मैं बता रही हूँ आपको। नहीं मानी वो, बोले मुझे पता है तू मेरे गले लगने के लिए वापस आएगी बेटा, और तू तसल्ली से गले लगेगी मेरी। तो यही था, चली गई वो, और पापा ने बताया गाड़ी में वो पूरा रास्ता इंडिया जाने तक रोई है तो दैट वाज सो क्यूट तो 6th अप्रैल को मैं निकल ली अपनी माउंट एवरेस्ट के लिए। बेस कैंप मुझे मैं पहुंची 13 अप्रैल को। इस बीच का सफर 14 अप्रैल को मैं पहुंची। इस बीच का सफर बहुत बहुत एडवेंचरस था, और मुझे तो लग रहा था बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ था मेरे लिए। भाई एक दिन में आप 34 किलोमीटर तय कर रहे हो, ठीक है, इतना हैवी बैग पैक है आपके कंधों पर, और मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े जो मतलब फॉरेनर्स लोग होते हैं, जो कि मतलब कहते हैं ना बेफिक्रे, उनको नहीं फर्क पड़ता क्या हो रहा है, ठीक है, और वो लोग थक जाते हैं। तो मैं तो अपने आप को कई बार वो कर लेती थी, यार मैं तो बड़ी छोटी हूँ, मैं कैसे चढ़ पा रही हूँ, लेकिन फिर वही था ना, एक जज्बा था, जुनून था। तो इतना भारी हैवी बैकपैक के बाद आप पहुंच रहे हो तो मुश्किल तो था ही। मैं पहुंची और मैंने मेरे दाजू को कहा कि दाजू दाई, जिनको नेपाली लैंग्वेज में बड़े भाई को दाजू या दाई बोलते हैं, तो मेरे साथ जो मेरे शेरपा थे मैं उन्हें दाई करके बोलती थी, मैं दाई हो गया हमारा, तो आधा रास्ता कवर कर लिया हमने, देखा है कितनी स्ट्रांग हूँ मैं, अपनी तारीफ कर रही हूँ मैं खड़े होके बेस कैंप पे हांफती हुई, क्योंकि सांस नहीं आ रहा था मुझे और वो कह रहे हैं कि नहीं बहनी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई जर्नी। और मुझे लगा ये मुझे डरा रहे हैं, मुझे नहीं डरना शिवांगी, डरना नहीं आपा ने, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने ये बात क्यों कही। और ये बात मैं समझी तब जब मैंने सच में आगे वाला रास्ता कवर किया। अभी तो मेरे आगे वहां पर ना एक बोर्ड लगा होता है, खुम्बू आइसफॉल करके एक जगह है जहां पर एक बोर्ड लगा है, जहां पर लिखा हुआ है कि खुम्बू आइसफॉल, नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है मौत का घर, मतलब डरा वो ऐसे देते हैं हमें ठीक है। तो चलो ये तो अच्छी बात है, नेपाली लैंग्वेज में, मुझे नीचे आते वक्त पता लगा ये एग्जैक्टली है क्या ये वर्ड्स अगर मुझे जाते हुए पता लगता तो मेरे तो दिमाग ही घूम जाता तो, तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, जब मैं कैंप 1 कैंप 2 कवर करती हूँ, तब मुझे लगता है कि दाजू सही कह रहे थे, ये तो आधा रास्ता भी कवर नहीं किया था, ये तो अब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। एक बार हमने लोड फेरी करते हैं जिसमें हम अपना आधा सामान कैंप 2 तक रख के आते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिन बिताने होते हैं, हम एक बार में इतना ऑक्सीजन कम लेवल है जब, तो एक बार में ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, मैक्सिमम 8 किलो आप कंधे पे डाल सकते हो, क्योंकि चलना आपको खुद ही होता है। तो ये सब करते हुए 2 लोड फेरीज मैंने करी और फाइनली मैं कैंप 2 पे पहुंचती हूँ। लगभग अपने 16 दिन मैं बेस कैंप बिताती हूँ, एक्लिमेटाइज करती हूँ, जिसमें हम हाइकिंग ट्रैकिंग ये सब कुछ करते रहते हैं, छोटे छोटे पहाड़ है जिसपे कूदते फूदते रहते हैं। मैं बताती हूँ आपको, माउंट एवरेस्ट का जो मैं टॉप था ना, वो मुझे नहीं दिखा था बेस कैंप तक, लोगों को दिख जाता है अक्सर, एक पॉइंट होता है, लेकिन मुझे नहीं दिखा था, मेरे वक्त पे वेदर बहुत अनक्लियर था। तो मैं सोचती थी यार मुझे लगता है अब तो माउंट एवरेस्ट भी जाता है, मैं ऊपर जाके मिलूं उनसे, मतलब वो ना मुझे ऐसे दूर से नहीं देखना चाहता, वो तो मुझे ऊपर आके गले लगाएगा इतनी पॉजिटिविटी थी ना, मतलब अभी भी है खैर ठीक है। तो
मैं कैंप 2 पहुंच जाती हूँ। लगभग 16-17 दिन के अपने एक्लोमेटाइज होते हैं हम लोग। मेरे साथ और भी क्लाइंबर थे, यहीं हरियाणा के थे, और हम दोनों हैं साथ में, मेरे शेरपा हैं, लेकिन हम दोनों ज्यादा साथ नहीं रहते हैं। कैंप 4 पे हम एक साथ होते हैं और सबमिट एक साथ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अलग अलग रहते हैं। तो मेरा ये सोलो ट्रिप था, बिकॉज मेरे को किसी टीम में तो ले ही नहीं सकते थे, मैं अंडर 18 थी। तो अभी कैंप 2 पहुंचने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं पड़ी थी। लाइक टचवुड मेरा ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा रहता था, और बिकॉज ना मेरा बीपी हमेशा काफी लो रहता है, तो बीपी हाई तो हुआ ही नहीं मेरा माउंट एवरेस्ट पर जाकर भी। ऊपर टॉप पर जाकर हल्का हुआ, लेकिन नीचे तो हुआ ही नहीं। तो मैंने कैंप 2 पर ऑक्सीजन यूज नहीं किया। अभी हमारा है फाइनल पुश, जिसमें हम लोग वापस बेस कैंप आते हैं और फिर हम वहां से जाते हैं फाइनल पुश के लिए। जब मैं कैंप 1 निकल गई, फाइनल पुश है मेरा, और मैं कैंप 1 पहुंच गई, आई स्टार्टेड माई मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, आई गॉट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो ये वक्त होता है कि मतलब एक तो आप इतनी ठंड में, -20 डिग्री टेम्परेचर वहां का नॉर्मल है, ठीक है। आप लोग ऐसे पानी की बोतल को फेंक रहे हैं ना, तो वो नीचे जाते हुए बर्फ बन जाती है, ऐसा इतना ठंडा टेम्परेचर। तो वहां पर इफ यू गॉट दिस ना, खत्म, खलास हो तुम। तो मेरे साथ यही हुआ। तो नीचे खबर पहुंचा दी, बिकॉज आई हैड वॉकी टॉकी ऑन दैट टाइम। तो वो नीचे खबर पहुंचा दी कि शिवांगी तो बहुत स्लो चल रही है, हमें नहीं लगता हो पाएगा, थक गई है बच्ची। ठीक है, पर बच्ची नहीं थकी थी भाई। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया, पेन हो रही है, बट ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, ये भी निपट जाएगा। तो कहते ना 3 दिन की तो बात है, फिर क्या है। लेकिन वो लोग तो माने ही नहीं, वो मुझे बोल रहे हैं कि शिवांगी नीचे आ जाओ। अरे भाई, मैं मेरी ये रहा मेरा सपना, इसे छूने वाली हूँ मैं, और आप कह रहे हो मैं यहाँ से नीचे आ जाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। व्हाट आई डिड वेरी वेरी, मतलब गंदे वाला बचपना। मैंने मेरा वॉकी टॉकी बंद कर दिया। कर लो क्या करोगे। ठीक है, सब दुखी वहां पर मुझसे। अच्छा, उन्होंने मुझे ये बोला कि शिवांगी नीचे आ रहे हो, नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं आ रही, मैं एक शर्त पे आऊंगी, आप लोग मुझे ऊपर लेने आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ सकती वरना। अब वो लोगों ने मुझे कॉल करना ही बंद कर दिया। पहुंच गई मैं कैंप 2 अगले दिन ही। क्या हो गई ठीक, सबर रखा। यार पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, पेशेंस इज द की। ठीक है, लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द की के, ये पेशेंस इज द की। पेशेंस रखोगे तो सब मिलेगा आपको। रखा, कैंप 2 पहुंच गई। कैंप 2 पर जाके वॉकी टॉकी चालू किया और बताया, दाई कैंप 2 पहुंच गई, मैं बहुत सही हूँ और सबमिट करके आऊंगी, आपके नेपाल का भी झंडा फहराऊंगी। इतनी पॉजिटिव से सब ठीक है। अभी ऑक्सीजन तो लगाया नहीं, धीरे 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 फिर कैंप 3 की तरफ निकल गए। अब इन सब जर्नी के बीच में मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ थे मेरे गन्नू मामू, गणपति जी, जिन्हें मैं गन्नू मामू बोलती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने वो मुझे गिफ्ट दिए थे। उन्हें लगता है मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं आई एम नॉट, बट स्टिल उन्हें लगता है, ठीक है। और उन्हें लगता है कि जब पहाड़ों में बेटा तू अकेली हो जाएगी तो बतियाएगी किससे। मैं तो होंगी नहीं, कोई बकवास कैसे सुनेगा तुम्हारी। तो उन्होंने बोला कि अपने गन्नू मामू को, ये गणपति जी हैं, ये तुम्हारी हर चीज सुनेंगे, ये जवाब नहीं देंगे, ये सिर्फ सुनेंगे, जितना बोलो इनके साथ, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट कर देंगे मेरे से भी पहले। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और कहा ये मेरा भाई है और इन्हें अपने साथ हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, इन्हें आपने अपने साथ रखना है। मैं जब कैंप 3 गई ना, मतलब मैं गन्नू मामा में बहुत, मेरे को प्यार है उनसे, हद मार के, खुद से भी ज्यादा। लेकिन एक वही है ना, जब एहसास होता है ना किसी चीज का, तो वो अलग ही होता है। जब मैं कैंप 3 गई, एक इतना बड़ा और गंदा तूफान जिसका मैंने सामना किया, एवलांच था वो, और वो तूफान था जो एवलांच में बदल गया। हम लोग 19 क्लाइंबर एक साथ निकले थे, पहुंचते पहुंचते हम सिर्फ 8 रह जाते हैं, कुछ की एट द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो कुछ वहीं क्विट करके वापस चले जाते हैं। उस वक्त पे जब उस तूफान से मैं लड़ रही थी, तो गन्नू मामू मेरी पॉकेट में रहते थे हमेशा, राइट पॉकेट में, अपर पॉकेट में। मैं उन्हें हमेशा ना कॉटन और कपड़ों में लपेट के रखती थी ताकि उन्हें ठंडी ना लगे, क्योंकि ठंडी बहुत होती है भाई। ठीक है, तो मैंने ना, अब मैं, मुझे हो गया कम से कम 1.5 घंटा, तूफान नहीं थम रहा, मैं बहुत दुखी, मतलब फ्रस्ट्रेट, बस नहीं झेल पा रही मैं। तो अब मैं क्या करूं उस पॉइंट पे, क्विट तो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ क्विट मैं इस अपने मिशन का नहीं, मैं अपनी लाइफ का कर दूंगी, मुझे पता था। मैंने उन्हें बाहर निकाला, मैंने उन्हें ठंडी ठंडी बर्फ पे बैठाया, और मैंने कहा ये देखो, ये चीज मैं झेल रही हूँ इस वक्त, मेरा मुंह यहाँ से फट गया है इस हवा के कारण। मेरी सुंदरता पे असर पड़ रहा है इस चीज का। ठीक है, अब आप बताओ कि ये ठीक हो रहा है। एंड आप लोग विश्वास करोगे, करना पड़ेगा कि
15 से 20 मिनट के अंदर ना वो तूफान थम गया, और आने वाले सिर्फ 3.5 घंटे में मैं कैंप 3 पर बैठी थी, नूडल्स खा रही थी। ये विश्वास है मुझे उन पर और उन्हें मुझ पर, कि भाई इस लड़की में जो जुनून है ना उसको नहीं तोड़ना मुझे, ऐसा उन्होंने मुझे दिया है। कैंप 3 पर बैठी हूँ मैं, आराम से नूडल्स खा रही हूँ, और मैं जो चीज खाती हूँ पहले उन्हें खिलाती हूँ, वो भी खा रहे हैं, हम दोनों मजे में। तो अभी कैंप 3 भी हो गया। अब आता है मेन, जो मतलब जिसपे हमें फहराना है झंडा, वो आ गया, वो रास्ता जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी। हम लोग निकलते हैं सुबह 5 बजे, 14 मई को। 14 मई को सुबह 5 बजे हम लोग निकलते हैं, और हम लोग 6 बजे शाम को कैंप 4 पहुंचते हैं। नहीं, हम लोग 5 बजे निकल के 6 बजे कैंप 4 पहुंचते हैं लोथसे बिकॉज वहीं आता है, और हम एग्जैक्ट 8:02 पे कैंप 4 पहुंचते हैं एवरेस्ट के। 8:02 पे हम अभी कैंप 4 पहुंचे हैं। टेंट हमने किसी का पिच किया हुआ था, हमने उसी में स्टे करना बेहतर समझा, क्योंकि खुद के टेंट को पिच करने में 1 घंटा हमारा जया हो जाता, खराब हो जाता, तो क्यों करना। तो वहां पर अभी हमने टेंट के अंदर बैठे, पानी गर्म किया बर्फ से, बर्फ को मेल्ट करते हैं और पानी पीते हैं। अब इसका भी मैं आपको 2 मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। एक तो है जब मैं कैंप 2 पर थी, तो हमने आइस मेल्ट कर रहे थे और पानी पीने के लिए, तो जैसे ही मैं आइस में मतलब आइस डिक करती हूँ, तो मैं क्या मिलता है मुझे, कुछ काला काला दिखता है, और मैं सो क्यूरियस कि मतलब है क्या ये चीज काली काली। मैं सोच रही हूँ मेरे को हीरे मिल गए मुझे। मैं अपने आप में ही खुश। तो जब मैं थोड़ा और जरा मतलब जाती हूँ, जब डीप में, किस चीज के डीप में नहीं जाना चाहिए मुझे तब पता चला, लेकिन जैसे जैसे मैं डीप में जाती हूँ ना, मुझे वहां मिलता है एक हाथ कटा हुआ ब्लैक कलर का, जिसका चमड़ी तो जिसकी खत्म हो चुकी है, वो इतने टाइम पुराना है। मुझे मिलता है ऐसे इतना आधा कटा हुआ हाथ, ठीक है, हाथ नहीं बाजू। तो मैं मतलब इतनी कम ऑक्सीजन, आपकी गले से आवाज नहीं निकलती, और मैं मम्मी चिल्ला रही हूँ वहां पर। मेरे शेरपा बोलते क्या हुआ बहनी, मैंने कहा दाई यहाँ पे हाथ है। बोले अभी तो डेड बॉडीज भी मिलेंगी, ये तो हाथ है सिर्फ, डरना नहीं है आपा ने। दाई भी मेरे जैसा पॉजिटिव, मतलब मैं ठीक। मैं ठीक है भाई, नहीं डरना, बट डर तो लगता ही है मुझे। वैसे किसी चीज से डर नहीं लगता, भूतों से तो मैं कभी नहीं डरी, मुझे तो मैं कह रही हूँ दोस्त वोस्त बन जाए मेरे 3-4। मतलब डरती तो मैं नहीं हूँ किसी चीज से, लेकिन वो वही वो वाला टाइम डर का था, ठीक है। वो एकदम जब आपको दिखता है ना ऐसे, तो आँख खुलती है आपकी। तो ये मेरे एक बर्फ का था। एक और बर्फ का किस्सा है, ये ना बड़ा मतलब कहते हैं ना वल्गर टाइप का है। मैं जब हम ना बर्फ डिक करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग उसे मेल्ट करते हैं, और जब हम उसे टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट करते ही ना उसे थूक देते हैं, क्योंकि ना वो उस बर्फ में ना शायद कोई वहां पर उस वक्त पी करके गया था। मतलब ये भी हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो जब उसको पीते हैं ना, तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है इस चीज में। तो मैम दाई एक बार इसे टेस्ट करना, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो वो पीते हैं, और वो ऐसे फूंक निकाल के अपना सारा पानी बाहर, बोले इसको दोबारा मत पीना। और हम लोग कैंप 4 पे बैठ के इतना हंस रहे होते हैं ना उस वक्त, मतलब इतना फनी सा होता है वो सीन। और अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग 8:02 पे पहुंचते हैं कैंप 4, रात का वक्त है ये, और हम अक्सर क्लाइंबिंग रात को करते हैं फाइनल पुश। तो अभी हम लोग 8:41 पे वहां से निकल लेते हैं, मूव ऑन कर देते हैं समिट के लिए। और सुबह 8:21 फाइनली 16 मई को 8:21 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गन्नू मामू को निकालती हूँ, मैं उन्हें पूरा व्यू दिखाती हूँ। उन्होंने देख रखा है बट फिर भी फर्ज है, तो मैं उन्हें पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखो मामू, यही थी मेरी मंजिल, पहुंच गई मैं यहाँ पर। यहाँ पर कैसे आ जाते हैं यार लोग, मतलब मैं इतनी खुश, मतलब मैं याद करके भी कितनी खुश हूँ, तो सोचो वहां कितनी होंगी। तो बहुत मेरा अलग लेवल। और मैं तो वहां पर डांस करना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, ये मैं यहाँ पर हूँ, सब देखो मुझे। लेकिन इतना ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना कि आपकी हंसी निकल जाए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अंदरूनी खुशी होती है ना जो, वो सबसे मेन होती है, वो बहुत थी मुझमें। गाने चल रहे होते हैं, मेरे हेडफोन्स, मतलब मैंने वो लगा रखे थे ईयरफोन्स, क्योंकि ईयरफोन्स गाने होते हैं ना जो, वो देख लो मुझे तो माउंट एवरेस्ट चढ़ा गई। तो बहुत बहुत मुझे मतलब मेरा साथ दिया गानों ने। उस टाइम मेरे गाने चल रहा था उसमें, भाग मिल्खा भाग का गाने मुझे मोटिवेट वाले, ठीक है। तो वो भाग मिल्खा भाग और मैरी कॉम के सॉन्ग्स मैं सुन रही, दंगल के गाने सुन रही मैं, जबकि चढ़ना तो मुझे पहाड़ था, लेकिन दंगल ही हो रहा था वो मेरा उनके साथ। तो
वहां पहुंचकर मैंने फिर अपना राष्ट्रगान गाया और झंडा मैंने फहरा दिया अपना। और मैं सोच रही थी हनुमान चालीसा पढ़ डालूं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने अपना ओम भूर्भुवः स्वः में ही सारा मैंने पूरे दुनिया को अपनी पॉजिटिव वाइब्स दी ओम भूर्भुवः स्वः करके, क्योंकि जितना वो स्ट्रांग है ना उतना दुनिया में कुछ स्ट्रांग नहीं है। गायत्री मंत्र जितना कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे ना 108 बार गायत्री मंत्र रिपीट पे चलता था मेरे कानों में, अक्सर चलता था जब मैं एवरेस्ट पे थी, क्योंकि भोले बाबा की तो मैं मतलब पक्के वाली भक्त। तो अभी सब कुछ हो गया, 40 मिनट मैंने टॉप पे बिताए, जिसमें से 15 मिनट मैंने इन सब चीजों में दिए, बचे हुए 25 मिनट मैंने सिर्फ उस व्यू को एंजॉय किया, देखती रही, आंखें बंद करके एंजॉय किया मैंने उन्हें कैप्चर नहीं किया, कैप्चर किया कुछ फोटोज में किया, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों में कैद किया ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। वो व्यू ऐसा था, देखो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। मैं पूरा ऐसे जैसे कि रेगिस्तान होता है मिट्टी से भरा हुआ, वो भी रेगिस्तान था, लेकिन बर्फीला रेगिस्तान, चारों तरफ बर्फ, छोटे छोटे पहाड़ जैसे कि एवरेस्ट के बच्चे हों, इतने छोटे छोटे पहाड़, उनके भाई बहन सारे, कहीं से रॉकी एरिया है जैसे कि ब्लैक ब्लैक पत्थर दिखते हैं, तो कहीं से वो गोरे गोरे पहाड़ दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और जो बादल है ना वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि सच में आप ना किसी, वो फेरी टेल्स नहीं होती, परियों की कहानियां, ऐसी जगह आपको महसूस होती है। आपका मन करता है कि कूद जाऊं बस इन बादलों में, इनमें कूद कूद के ना ऐसे, मतलब एक वो वाली एड नहीं आती चोकोस वाली, वैसी वाली एड में चल रही थी मैं उस वक्त ठीक है, उनमें कूदना चाहती थी मैं, लेकिन मुझे पता था वो धोखा दे जाएंगे मुझे, ये कूदी ना मैं तो ऐसी जगह गिरूंगी, मेरे को नहीं पता लगेगा तो इतना ब्यूटीफुल व्यू होता है वो। अभी हम नीचे आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नीचे आते वक्त मेरा एनर्जी लेवल हो जाता है लो, और मुझे आने लगती है नींद, क्योंकि अब मुझे चलते हुए लगभग 38 घंटे हो गए हैं, 1 मिनट का जहाँ रेस्ट नहीं लिया गया है, बिल्कुल सहन से बाहर है इस वक्त ये चीज। चाय पी ली, कॉफी पी ली, मुंह में कैफीन, ये जो हमारी कॉफी होती है, उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें, होते हैं ना सीड्स होते हैं, उन्हें भी मुंह में रख लिया, कितने कड़वे होते हैं, उनसे ना नींद नहीं आती आपको, वो इतने कड़वे होते हैं ना कि आपकी नींद ही खोल देते हैं, वो रख लिए, लेकिन नींद नहीं जा रही मेरी। हम लोग सुबह 8:21 पे सबमिट करने के बाद लगभग 9 बजे वहां से निकलते हैं, और पहुंचते पहुंचते ना कैंप 4 पर ही हमें सिर्फ 6 बज जाते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन एनर्जी इतनी लो थी कि इतना वक्त लग गया। कैंप 4 पहुंचकर हम लोग एक दिन वहीं स्टे करते हैं, और ये वाला जो डिसीजन था ना, ये बहुत गलत हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि गन्नू मामू साथ थे यार मेरे, ऐसा कैसे हो जाता बचाया उन्होंने मुझे वहां से भी। कैंप 4 पे नाइट स्टे करना मतलब बिगेस्ट थिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सोना। मुझे याद है कि कम से कम 9 बार तो मेरी नींद खुली थी, क्योंकि मेरा मास्क ही हट गया था, मैं उसे टाइट कर रही हूँ, ऐसे मैं पकड़ के सो रही हूँ उसे, और मास्क हट जाए तो सांस कैसे लेंगे आप, 12 से 14 सेकंड के बाद आप सांस नहीं ले सकते अगर मास्क नहीं है तो, ठीक है। तो अभी फाइनली लेकिन मैं नीचे आ जाती हूँ, मैं कैंप 2 पहुंचती हूँ, और फिर मुझे पता चलता है, क्योंकि वॉकी टॉकी तो मेरा कैंप 3 पे ही गिर जाता है जाते वक्त, तो फिर मुझे सारी पता चलता है कि शिवांगी एक बार तो तुम्हारा हो गया है यहाँ पर, इन सबकी नजरों में तो तुम हो ही नहीं, ठीक है, ये हो रहा है मेरे साथ। एक स्कूल में जा गई थी मैं, नेपाल जब मैं गई थी, तो एक स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था कि ऐसे बच्चों से मिलने के लिए, कि आई वाज 16 years old एंड माय लाइक जो मेरा माय ड्रीम इज टू क्लाइंब द एवरेस्ट, मतलब इतना ऊंचा ड्रीम है और क्या मैं उसे कर पाऊंगी, ये करके ना बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बुलाया था मुझे। उन बच्चों ने मेरा कैंडल मार्च भी निकाला था, तो मतलब ये भी हुआ है, ठीक है, वो चीज न्यूज में पढ़ रही हूँ मैं नीचे आकर। और अभी क्या, मैं कैंप 2 पहुंचकर नीचे एजेंसी में कॉल कर रही हूँ वॉकी टॉकी से, मेरी आवाज बिल्कुल खत्म है, क्योंकि एनर्जी तो है ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, नमस्ते दाई, मैं शिवांगी, मैं कैंप 2 पहुंच गई हूँ, मैंने सबमिट कर लिया है और मैं ठीक हूँ। और वो बोल रहे, अभी मेरी बात खत्म हो गई है, वो बोल रहे कौन दाई मैं शिवांगी, शिवांगी पाठक, एवरेस्टर शिवांगी पाठक बन गई हूँ दाई मैं। उन लोगों को तो यकीन नहीं हुआ 2 मिनट तक फिर उन्हें यकीन हुआ। फिर जब मैं नीचे आई, मैंने मेरी मम्मा से बात करी वॉकी टॉकी के थ्रू, स्पीकर से, उनका स्पीकर ऑन था वहां से, वहां पर मैंने उनसे बात करी कि मम्मी राम राम, मैं सबमिट कर लिया मैंने, सिर्फ 4-5 दिन हो रहा है मम्मी, हम गले लगने वाले हैं। अब मेरे दिमाग में ना कहीं वो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज थी, मुझे मेरी मम्मी के गले लगना है। तो अब मैं नीचे आती हूँ, काठमांडू पहुंच गई मैं। अभी मैं बेस कैंप का एक छोटा सा आपको नजारा दिखाती हूँ इस बीच में। मैं जब बेस कैंप आती हूँ ना, 6-7 रिपोर्टर हैं जो इस वक्त मेरा वेट कर रहे हैं वहां पर। ये जो फील है ना,
ये नहीं मिल सकती आपको किसी चीज से, ये सिर्फ मुझे मिली है। मतलब रिपोर्टर अभी मेरा वेट कर रहे हैं, अभी शिवांगी का वेट नहीं कर रहे, एवरेस्टर शिवांगी का वेट कर रहे हैं। मतलब एवरेस्ट का नाम जोड़ के आई हूँ मैं अपने साथ। वो कह रहे हैं शिवा, मैं इतना थकी हुई, मैं बोल नहीं सकती, मेरा मुंह फटा हुआ है जगह जगह से, मैं चल नहीं पा रही, गिर गिर के तो चल रही हूँ मैं उनको देखते ही वो मेरे शेर पर बोल रहे हैं बहनी पानी, मैं नहीं, हट जाओ, पहले इंटरव्यू दूंगी मैं। बोलो मैम रिपोर्टर को क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैं बताऊंगी। ये एनर्जी आई है मेरे में। तो अभी ना मतलब इतना एक फिर से वो लेवल आ गया, एनर्जी सारी वापस आ गई मेरी, ज्यादा आ गई इस बार तो। अभी मैं नीचे पहुंचती हूँ और नीचे पहुंचकर मुझे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोग गेस करेंगे मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं फोन लेती हूँ और शिवांगी पाठक सर्च करती हूँ। और इस वक्त ना मैं टॉप सर्च में हूँ। मोदी जी मुझे ट्वीट कर चुके हैं, मोदी जी, प्रेसिडेंट सर, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सब मुझे ट्वीट कर चुके हैं। मेरे श्रीनिवास मामू हैं जो एबीवीपी, सब आरएसएस, सब ने मुझे ट्वीट किया है और मैं उसे देख रही हूँ। मतलब आ गई मैं गूगल पे, दिखा दिया मैंने दुनिया वालों को कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। एक बार मौका दो उन्हें, एक बार निकलने दो। और बात बेटियों की नहीं है, बात है बेटों की भी। कोई भी बच्चा अपने जीवन में पीछे नहीं रहना चाहता, सब आसमान की ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों से भी ऊंचे उड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्हें जरूरत होती है सपोर्ट की, जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली दे सकती है, सिर्फ माँ बाप, माता पिता होते हैं जो हमारे, वो दे सकते हैं। उनपे विश्वास करना चाहिए हमें जी भर के। हम दुनिया वालों की बातों पे विश्वास करते हैं, इससे पहले हमें अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। और बच्चों का जो फर्ज होता है वो सिर्फ एक होता है, अपने माँ बाप का विश्वास कभी ना तोड़ना। अगर उन्हें 2% विश्वास है ना, तो उसे 200 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बच्चे का फर्ज होता है। और ये मैंने निभाया है, ये मैं आज भी निभा रही हूँ। आज भी आसान नहीं है। आज भी अगर मुझे 7:30 बजे घर से बाहर निकलना है, इतना सबके बाद भी, तो भी मैं मेरे मम्मी पापा से पूछ के जाऊंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जाने दो, और उसके बाद भी वो कहेंगे कि 9 बजे से पहले घर चाहिए। आज भी ये है। लेकिन उन्हें इतना तो विश्वास है कि मुझे 9 बजे से पहले तक वो भेज रहे हैं बाहर। तो ये विश्वास आपको अपने पेरेंट्स को दिलाना है, और पेरेंट्स को आप पे करना है। यही रूल है, और इसी से आप आगे बढ़ेंगे, इसी से वो भी खुश रहेंगे, इसी से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मेरा तो यही मानना है। बाकी इन सब जर्नी में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो कि मेरे साथ हुए, शायद मैं एकदम से अभी नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज्यादा जर्नी बड़ी है ना। 60 दिन का मेरा पूरा था ये एक्सपीडिशन। इतना सब कुछ हुआ, कभी घर पे फोन नहीं लगता था, कभी 20-20 दिन बीत जाते थे, मम्मी की आवाज नहीं सुन पाती थी मैं, पापा से राम राम नहीं हो पाती थी, किसी बच्चे से, मेरे भाई बहन, मतलब भाई बहन से बात ना हो पाना है, किसी दोस्त वोस्त तो खैर मेरे नहीं थे उस वक्त, मैं इतना बिजी थी अपने मिशन में, दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं था, ना ही दोस्तों पास वक्त था कि वो भी मुझे कुछ कर सके, मेरे से बोल सके या कुछ ऐसा कर सके, क्योंकि कभी ऐसा सोचा ही नहीं इस तरफ। मोटो तो सिर्फ एक ही था ना। जब वो हो गया उसके बाद माउंट किलिमंजारो, जो कि साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक है, उसे क्लाइंब किया। माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप हाईएस्ट पीक है, उसे क्लाइंब किया। स्पॉन्सरशिप, मुझे स्पॉन्सर्स मिले। किलिमंजारो में मुझे श्रीनिवास जी हैं, और जैसे कि उनकी है कस्तूरी मेमोरियल ट्रस्ट, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। एल्ब्रूस में मुझे होंडा ने स्पॉन्सर किया। ये सब करते करते 3 पहाड़ मैं अब तक कर चुकी हूँ सबमिट। अभी तो बहुत रह गए हैं, धीरे धीरे जरूर होंगे। अभी तो ये हमारा सबसे मेन जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से काफी रुक गए हैं, पूरी दुनिया रुकी हुई है। मैं अकेली नहीं, आप अकेले नहीं रुके हुए, पूरी दुनिया सफर कर रही है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि देखो लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन अपन अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हमें अपना भी ध्यान रखना है, अपने देश का भी रखना है। हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, कोरोना वायरस में ज्यादा कर रहा है, वैसे कम कर रहा है लेकिन वैसे ज्यादा कर रहा है। ठीक है, केसेस में कितनी ज्यादा तरक्की कर गया। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, जिस हिसाब से हम लोग बिल्कुल बेपरवाह होते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जिनको नहीं है ना कोविड-19, जिनका पॉजिटिव, उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, और जिनको है उन्हें खुलेआम घूमने दिया जाएगा कि भाई तुम्हें तो है ही, हम तो बचे। ये हो रहा होगा। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, दूध दही घी सब खाओ पियो, गायत्री मंत्र, मेडिटेशन, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसे करो। अपने पेरेंट्स को कराओ, पेरेंट्स बच्चों को कराएं, और हम लोग अपने बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें कराएं। ये बहुत जरूरी चीज है। मतलब इम्यून सिस्टम अगर आपका हाई है तो फिर आपको कोरोना वायरस क्या, कोई वायरस भी नहीं छू सकता आकर। तो मेरी जर्नी तो यहीं पर ही खत्म होती है। इतना अच्छा सेशन गया मेरा,
होप करती हूँ आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड मैंने थोड़ा इंग्लिश को कम यूज किया है बिकॉज इमोशंस हिंदी में ही आते हैं, लैंग्वेज तो वही है ना, हमारी मातृभाषा है मदर टंग है, तो इसे तो नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए हिंदी में जो इमोशंस है वो इंग्लिश में नहीं आ सकते। तो मेरी जर्नी यहीं खत्म होती है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कोई भी क्वेश्चन, इवन अबाउट द मोटिवेशन, इवन अबाउट द इंस्पिरेशन, कोई चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आई एम हियर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा जवाब दे पाऊँ आपको। Amazing, amazing journey, ma'am. It was indeed a very fruitful discussion and a lot of learning for everyone present here. Thank you, ma'am, for such inspiring and motivating words. Since it was an amazing Same here. session, since it was an amazing session, we have received a bucket full of questions from our audience, and they would love for you to answer them. So, ma'am, shall we proceed to the questions? Okay. Yeah, Okay. go for it. Okay, so the first question is, what elements of the mountains make climbing difficult, and how did you feel after receiving the award from our honorable president, sir? Okay. Can you please repeat the first part? Line miss हो गई मुझसे. Of course, ma'am. What elements of the mountains make climbing difficult, and how did you feel after receiving the award from our honorable president, sir? So, सबसे मेन जो डिफिकल्टीज हैं, क्या डिफिकल्ट ऐसी चीज है जो आपको मतलब पहाड़ों को चढ़ना मुश्किल कर देती है, वो ये है कि वहाँ का वेदर सबसे मेन, जो कि किसी के भी हाथ में नहीं होता है। तो वो वेदर अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए ना, अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो फिर आप नहीं किसी पहाड़ पे चढ़ सकते। और एक चीज है ना, जान है तो जहान है। पहाड़ वहीं खड़े हैं, हम हमारे में जाना है तो हम फिर से यहाँ पर आ सकते हैं, ये बात समझाई जाती है हमें। सबसे पहला रूल है ये माउंटेनिंग का। दूसरा रूल है कि अपना पानी कभी किसी को शेयर मत करो। खून दे दो बट पानी मत दो। पानी के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। पानी में H2 होता है, O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, जो कि आपको सांस लेने में आपकी हेल्प करता है पानी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, तो उसे कभी शेयर नहीं करना। और सबसे मेन तो है वेदर का। तीसरा है आपकी विल पावर। अगर आप विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑफ कोर्स क्लाइम कर सकते हो। बाकी डिफिकल्टीज वहां पर सबसे मेन वेदर की रहती है। दूसरा रहती है अगर स्नोफॉल हो जाता है वहां पर, तो फिर उसके अंदर ना आपको पता ही नहीं है कि जो क्रिवासीज है, जो कि खाई है वहां की, जिसको क्रिवासीज बोलते हैं, उसमें अगर आपका कहाँ पैर जा सकता है, आपको पता ही नहीं आगे क्रिवास है भी या नहीं है। ये है वहां की सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो मुझे महसूस हुई। और सेकंड था कि मुझे अपने प्रेसिडेंट सर से मिलकर कैसे रखा, प्राइम मिनिस्टर सर से। तो मैंने प्रेसिडेंट सर के साथ तो मैंने डिनर किया है। हम लोगों ने उन्हीं के जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पर डिनर किया है। बहुत ही टेस्टी खाना था, बर्गर था, छोटे छोटे पिज्जा थे बच्चों वाले, बिल्कुल ऐसे ना, बाल शक्ति पुरस्कार था, मेरे साथ साथ और भी बच्चे थे। तो बर्गर पिज्जा उन्होंने बनवा रखे थे वहां पर, मतलब मैंने 3 दिन खाए वहां पर, इतना टेस्टी सामान था और साथ में कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ भी था। और कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी बाहर की नहीं थी, सब उन्होंने हैंडमेड था उनका। बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना था। तो पहले तो मैंने खाने की बात कर दी बिकॉज मैं तो हुई फूडी, चलो और मुझे मिलकर कैसे लगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं जब गई ना वहां पर तो हमें सिखाया जाता है कि आपको ऐसे टर्न करके जाना है, उन्हें नमस्ते करनी है हाथ जोड़कर, फिर आपको जाना है, फिर उनसे हैंडशेक करना है। और हैंडशेक तब तक नहीं करना जब तक वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते। तो यही था, मैं ऐसे खड़ी हो जाकर एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि भगवान जी प्लीज हाथ मिल जाए, भगवान जी प्लीज यार एक बार ना बस हाथ हेलो हो जाए, बस एक बार बस एक फोटो आ जाए अच्छी सी यही हुआ। तो वो खुद खड़े हुए, ठीक है, उन्होंने उससे हाथ मिलाया। उन्होंने कहा आप शिवांगी पाठक है आपका नाम? आई सेड यस, शिवांगी पाठक। बोले शिवांगी पाठक, उन्हें शिवानी और शिवांगी में कंफ्यूजन थी। मैं कहा हाँ जी सर, शिवांगी पाठक। तो उन्होंने कहा ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई? यस सर, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कीप इट अप। ऐसे करके उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ ऐसे थपकी दी है ना, जो वो थपकी तो मतलब अभी भी महसूस होती है मुझे इतनी प्यारी थी। और बिकॉज यार प्रेसिडेंट सर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर इंडिया, ठीक है, तो प्राउड तो फील होता ही है। ये वाला था। प्राइम मिनिस्टर सर से मिलकर तो मतलब मैं फिर से एवरेस्ट को टॉप पे ही थी मैं उस वक्त, जब मैंने उनके साथ 57 मिनट्स ऑलमोस्ट बिताए हैं आपने, जहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि नेचर के करीब कैसे रहना है।
उन्होंने हमें बताया कि कैसे अपने से बड़ों का आपको कैसे कहना मानना है, अपनी लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है। ये कुछ टिप्स दिए हम बच्चों को, बहुत प्यारे प्यारे से, मोटिवेट से। हम सबसे हमारी जर्नी पूछी थोड़ी थोड़ी। मेरे से उन्होंने 6-7 मिनट लगातार बात करी, जिसमें उन्होंने मेरी जर्नी पूछी, मेरा इंट्रोडक्शन दिया पूरा, 2-3 क्वेश्चन पूछे। एंड जब मैं उनसे, उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया, एक वॉच जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ था और पीछे प्राइम मिनिस्टर सर के साइन थे। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर सर के घर पे हमने लंच किया था उन्हीं के साथ, जहाँ पर वही फिर से टेस्टी स्प्रिंग रोल भी थे, और वहां तो मेरे फेवरेट है। तो तो वहां पर ये सब था। और वहां की जो प्लेट्स थी ना, वो तो थी गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, इतनी प्यारी थी ना। और जो वहां की स्पून थी ना, सिल्वर स्पून, वो सिल्वर प्लेटेड थी और उस पर लिखा है सत्यमेव जयते। मतलब मजा आ गया था देखकर। तो ये था वहां पर, बहुत अच्छा लगा प्राइम मिनिस्टर सर से मिलकर, बहुत मोटिवेशन आई। उन्होंने कहा अपने देश का नाम ऐसे रोशन करना और ऐसे ही करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। Such dedication and hard work deserves an award, ma'am. A lifetime memory. Thank you so much, ma'am. सेम यार। हेलो मैम, एक तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी को सुन के हम लोग को इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। आप हमारी अपनी जर्नी बताते हुए खुद इतना खुश हो रहे थे, मतलब दिख रहा था वो आपके चेहरे पे, आपकी सक्सेस मतलब कितने प्राउड। Correct. हम लोग उतने ज़्यादा खुश थे, हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था कि पूरी जर्नी सुन के, मतलब एक तो सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स को, फैमिली, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, सबको इतना बड़ा सल्यूट है, आपको इतना बड़ा सल्यूट है कि सबने इतना सपोर्ट किया आपको, मतलब लिटरली बहुत सपोर्ट मिला है। एंड हम लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, आप चैट बॉक्स में अगर आप देख पाओ तो लोग इतने ज़्यादा लिख रहे हैं कि वी आर ह्यूज फैन, इतनी ओके, या आई Yes. गॉट द होती है मैसेजेस। देखो, मतलब फैंस तो आपके हम सारे हो चुके हैं, इतनी ज्यादा लाइवली स्पिरिट है आपकी, मतलब ज्यादा मजा आया आपके साथ ये सेशन करके। मतलब चैट बॉक्स अगर पढ़ पाओ तो देखो सब लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, ह्यूज फैन, और ये सब बहुत मजा आया आपके साथ। एक क्वेश्चन बस मेरा यही था कि कभी भी आपको सोसाइटी की तरफ से कोई भी मतलब नेगेटिव आया कि नहीं यार लड़की है नहीं करना चाहिए, अगर आया तो आप लोगों ने कैसे टैकल किया उस चीज को? स्टार्टिंग में बहुत आया, जब नहीं किया था तब तक बहुत आया। मेरी मम्मा स्कूटी चलाती थी, गाड़ी चलाती थी, तो वो मुझे लेकर जब प्रैक्टिस के ग्राउंड जाती थी ना, तो वो सब लोग कमेंट करते थे। मतलब हरियाणवी लैंग्वेज मुझे नहीं आती है बोलनी, बट वो जिस वे में करते थे ना, मेरे आगे मेरे मुंह पे करते थे। ओ या देखिए, या छोरी देखिए जा रही है, अपनी माँ गले जा रही है, ठीक है, ऐसे वो लैंग्वेज वो यूज करते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी इफ आई सेइंग समथिंग रॉन्ग अबाउट द लैंग्वेज, बिकॉज मुझे नहीं आती है, बट मैं हिंदी में बोलती हूँ इसे। कि देखिए अपनी माँ, अपनी ना माँ बेटी दोनों चल चल जाती हैं, सुबह घूमती हैं, शाम को घूमती हैं, पूरा दिन जब भी देखो घूमती रहती हैं, इट्स लाइक हांटती रहती हैं। और जब मैंने माउंट एवरेस्ट कर लिया ना, तो वही लोग मेरे पास आके बोल रहे हैं, हमें तो पता था ये एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। तो और मैं बताऊं लोगों की सोच क्या होती है। मेरा मानना ये है कि जब बारिश आती है ना, तो एक जगह तो मोर नाच रहा होता है, भगवान इतने खुश होते हैं, नेचर, मोर, पेड़ पौधे सब खुश होते हैं। लेकिन एक जगह ना दुनिया बोल रही होती है कि दुनिया में ना पापी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो कभी कोई बोल रहा था कि आज भगवान रो रहा है, देखो बारिश कर रहा है। ये है लोगों की सोच, किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है। हम क्यों किसी पे देखें यार, हमें खुद से मतलब होना चाहिए। जिंदगी में हम खुद जी रहे हैं, हमारे पास एक आत्मा है, हमें तो उसे खुश करना है। हम अगर खुद की आत्मा को खुश रख सकते हैं ना, तो कोई दुनिया की ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। अपनी बातों से, अपनी हरकतों से हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स थे स्टार्टिंग में। मतलब मैं तो बता भी नहीं सकती, इससे भी ज्यादा थे। लेकिन अब वो पॉजिटिव है, अभी भी कुछ नेगेटिव है, वो अभी भी बोलते हैं कि ये कर लिया एक पहाड़ पे चढ़ के। ये ये सुनने को मिलता है मुझे। आंटी ठीक है, आप चढ़ के देखो, आपको पता लगेगा मैंने क्या किया है, ठीक है। कभी बात करो आके मुझसे, 1 घंटा बैठ जाओ मेरे पास आके, आपको दुनिया के नजारे ना दिखा दूं तो मैं बैठे बैठे दिखाऊंगी कमरे में। ये वाला चीज है मेरे में, ठीक है। तो नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें लोगों के कमेंट से, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने माँ बाप पे विश्वास होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है, तो फिर नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, मतलब आपकी इतनी लाइवली स्पिरिट है ना, मतलब इतने, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना इस सेशन में, सीरियसली इतने ज्यादा मोटिवेट हुए हैं आपसे, इतने ज्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, आपकी स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, मतलब वी सल्यूट यार, इतना बड़ा सल्यूट है आपको कि इतना अच्छा अकम्पलिशमेंट है, इतनी सक्सेस है आपको।
So Thank you. also we have some enthusiastic panelists जो कुछ questions रखे और इसके लिए. So firstly I would invite Bhavi Jain to ask the question. Okay. Good morning, ma'am. Hey, good morning. I am Bhavi Jain, the management head of Studio Matrix Saharanpur. So, एक तो आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी मोटिवेशन मिली है. So, Thank मेरा you. क्वेश्चन बस यही है आपसे कि जैसे आपने कहा कि आप फूडी हो, तो आपने कैसे मैनेज किया अपनी डाइट को और अपनी फिजिकल फिटनेस को? यहाँ ना मैं रो सकती हूँ, मतलब मुझे पता ही बात जब ऐसे मेरे भाई आके, ऐसे भाइयों का ना काम यही होता है, ऐसे सामने बैठ के मैगी और पास्ता खा रहे होते थे ना, मैं सिर्फ देख रही होती थी. और मैं ऐसे, मुझे वो उस टाइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. लेकिन ना सपना वो, आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है ये बात कि सपना वो नहीं होता जो आपको सोते हुए आए, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे. खुली आंखों से देखा हुआ सपना पूरा होता है. तो जब वो ये खा रहे होते थे ना, वो उस टाइम मुझे चिढ़ाने की सोच रहे होते थे और मेरी आंखों में ना उस टाइम एवरेस्ट का टॉप घूम रहा होता था. और मुझे ये था कि शिवांगी सोच, थोड़े टाइम का सेक्रीफाइस तुझे कहाँ ले जा सकता है. ठीक है, मैं जब अपने बाल कटवा रही थी तब भी मैंने यही सोचा, ये तो घर की खेती है, कभी भी बढ़ जाएंगे. जब मैं खाना खा रही होती थी, मैं छोड़ देती थी ना, मैं यही सोचती थी पेट तो अपना ही है, दोबारा भर लिया जाएगा. जैसे कि ना एक वो होता है ना, एक वो टाइम था मेरा, वो हार्डवर्क का टाइम था. अब मैं कुछ भी खाऊं, अब मैं मैगी खाऊं, मैं पास्ता खाऊं, लेकिन वो मुझे पता है ना मुझे क्या खाना है. तो सबसे मैंने ये तो था. एक दूसरा ये था, मेरे मम्मी पापा, वो लोग मुझे बहुत समझाते थे, मतलब ज्यादा समझाते थे वो लोग मुझे. उनको तो ऐसा लगता था मेरे से बड़ा झल्ला कोई नहीं. अभी भी लगता है, अभी भी रात को 1-1 घंटा समझाता है, बेटा तूने बहुत खा पी लिया, अब तू पतली हो जा, अब तू ये कर ले वो कर ले. तो ये चीजें ना मोटिवेट करती रहती है मुझे ना. मैं बताऊं, मेरे को, मैं खुद मोटिवेट करती हूँ. मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं एकदम. लेकिन मैं जब अपने रूम में बैठती हूँ ना, मैं खुद से बात करती हूँ, खुद से बात करती हूँ. और खुद से बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सच का सामना करते हैं. ठीक है, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती और आपको ना मतलब सच्चाई पता लगती है, ये चीज है और एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, और जब आप अपनी जिंदगी में कुछ एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना, कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती. तो उस वक्त मैंने एक्सेप्ट किया कि खाना खाना इट्स नॉट अ बिग डील. Foodie is not a big deal. Big deal is to summit the Mount Everest. Mount Everest है big deal. मेरा हार्ड वर्क है बिग डील, तो मुझे वो करना है. ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो आई जाई है, दोबारा आ जाएंगी. तो ये थी मेरी सोच, बस इसलिए हो गया. Thank you, ma'am. बहुत inspiring है. Thank you. Next panelist is Vyas Agarwal, so please proceed. Vyas. Thank you, Arnav. Good morning, ma'am. This is Vyas Agarwal. I am the Deputy Head of Outreach. Ma'am, I would like to ask you a question that being a youngster, how difficult was it for you to manage such a daring task? And, rising amongst all the youngsters who get themselves indulged into unpleasant activities. देखो, जब मेरी ये करने की उम्र थी ना, तो एक तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे. जो फ्रेंड्स होते हैं ना, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है इविल. जैसे कि हम देखते नहीं कार्टून्स में, इस साइड अच्छा वाला बोल रहा होता है व्हाइट कलर का, इस साइड होता है रेड कलर का. तो फ्रेंड्स का वही रोल होता है. एक साइड से तो मिलती है मोटिवेशन, एक साइड में क्या करेगी पहाड़ चढ़ के. और मैं बताऊं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी मम्मा. मैंने जब माउंट एवरेस्ट का सोचा ना, तो मैंने मेरी मम्मा को बताई ये बात. मैं कहा मम्मी मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया. अगर मैं मेरी दोस्त को बताती ना ये बात, मेरी किसी बेस्ट फ्रेंड को, तो वो पता है क्या बोलती, तू इतनी मोटी सी, तेरा खाना तो छूटता नहीं है, तू इस सीढ़ी चढ़ के दिखा मुझे, ये 7 सीढ़ी चढ़ के दिखा. ठीक है, मेरा वो सपना ऐसे उड़ जाता, भूल जाती मैं उसे. कितनी बार हम अपने सपने ऐसे उड़ा देते हैं. अगर आपको कोई चीज करनी है ना, पहली बात तो उसे मन में रखो अपने, हर एक को मत बताओ. क्योंकि आज किसी को अगर आप अपनी अच्छी बात बता रहे हो ना, तो कई बार बंदा सहन नहीं करता. तो इसीलिए उसे अपने मन में रखो. बताना है तो अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ, उन्हें अपना दोस्त बना लो, खुद को अपना दोस्त बनाओ. मेरी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, मेरी मम्मा है, और एक और है, मैं मिलवाती हूँ आपसे. इसको जितना कुछ पता है ना मेरे बारे में, उतना किसी को नहीं पता. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना सिर्फ बोलती हूँ, तो मेरे को ऐसे मोटिवेशन आती है. ठीक है, खुद से बात करने में, अपनी मम्मी से बात करने में मोटिवेशन आती है. और जो आपने मुझसे पूछा ना कि बीइंग अ यंगस्टर, आजकल मतलब अभी आपने रिसेंटली सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत का, यार
इतनी शॉक न्यूज थी, मैं खुद 2 दिन तक खाना पानी नहीं पचा मेरा कि ये क्या हो गया, बिकॉज मैं तो मतलब फैन, मेरी उनसे चैट हुई है इंस्टाग्राम पे, मैंने उन्हें मैसेज किया था कि सर आई एम शिवांगी पाठक, आई सबमिटेड माउंट एवरेस्ट एंड ही कांग्रेचुलेट मी, ठीक है, he did it. It was like I was on the top of the world कि सुशांत सिंह राजपूत, he replied me back, ये था मतलब मेरा, ठीक है। और फिर एक दिन ये खबर आती है कि he is no more। कितना मतलब माइंड में स्ट्रेस लेते हैं आप लोग, तो नहीं लेना भाई अपने को। एक इसके ना छोटा सा किस्सा है, एक राजा होता है, ठीक है, तो ये बहुत ना मुझे बहुत फेवरेट है मेरी कहानी। एक राजा होता है ना, वो हमेशा क्या होता है ना, बहुत खुश रहता है, तो वो ना दुखी रहने लग जाता है, वो बहुत सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग पीछे पड़ा रहता है उसके, ठीक है। अब क्या होता है ना, वो एक पंडित पास जाता है, और वो जो पंडित ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि ना मैं आपको 2 पर्ची दे रहा हूँ, एक पर्ची है जब आप बहुत सुखी हो ना इसे तब खोलना, और ये पर्ची है कि जब आप बहुत दुखी हो तब खोलना। अब ना वो होता है बहुत दुखी एक दिन, ठीक है, इतना दुखी कि उसका ना सब खत्म हो जाता है, लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं उससे अपना सामान वापस लेने के लिए, अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो राजा से रंक बन चुका होता है। वो फाइनली उस पर्ची को खोलता है और वो उस पर ये देखता है, ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज को नहीं अपनाते अपनी लाइफ में, हम सोचते हैं यार अब ये हो गया, प्रेजेंट में जीना चाहिए, मरना नहीं। हाँ, ये जो प्रेजेंट चल रहा है इसको हमें जीना है, सोचना है आगे जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और सब्र, पेशेंस इज द की, उसका फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, बस एक बार रखने की देर है, ठीक है। तो दूसरा, जब वो दूसरी पर्ची होती है ना उसकी, वो बहुत खुश होता है, वो उस चीज को जी लेता है, ये वक्त गुजर जाएगा करके। वो जब दूसरी पर्ची, जब वो बहुत खुश होता है ना, फिर खोलता है वो कि अब तो मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, मैं बस, मेरी मौत आने वाली है, ठीक है, मैं अब जाने वाला हूँ भगवान के दरबार में, तो अब मुझे क्या करना है। वो उस पर्ची को खोलता है ना जब, तो उस पर लिखता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। ना सुख रहता है ना दुख रहता है, अप्स एंड डाउन्स, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है। तो हमें इतना फोकस नहीं करना इन चीजों के ऊपर, हम सब लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बस हमारी डील्स अलग अलग हैं, सिचुएशन सबकी एक है, सब आप या मैं नहीं, मैं भी इस वक्त मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, ये सब होने के बाद भी मैं अपने थॉट से स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि इतना लॉकडाउन लग गया ना, तो हम लोग घर में बैठे हैं, ओवर थिंकिंग आती है, अलग अलग ख्याल आते हैं, यार होगा क्या, कब जाएगा ये कोरोना, कब हम आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, ये थॉट्स आते हैं। तो ये नहीं आने चाहिए, है सबके लिए भाई, हम अकेले नहीं बैठे रहो घर पे, अपने पूरी दुनिया सफर कर रही है। तो कभी भी अपने माइंड को स्ट्रोंग कर लो, इतना मतलब ना समुद्र बना लो इसे। समुद्र में अगर कोई पत्थर मारेगा ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मग्गे में अगर कोई पत्थर मारेगा ना, उसका पानी बाहर निकल के आएगा। अपने आप को समुद्र बना लो, छोटी सी इतनी सी कोई अगर गलत चीज है ना, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। अपने स्ट्रोंग माइंड को, दिल को, बॉडी को, हर चीज को इतना बनाना है जब अपने को। तो मेरा तो यही है, देखो रूल, मेरी लाइफ का रूल है, ये है कहीं मेरी लाइफ का, मैंने आपको मतलब आज दिया है, तो कोशिश करना थोड़ा सा इस पे चलना, देखो कितना अच्छे से जी पाओगे आप सब। आपको नहीं कह रही मैं पूरे जितने भी, अगर मुझे 10, 15, 20 जितने भी सुन रहे हैं ना, मैं सबको कहना चाहती हूँ ये बात। Ma'am, थैंक यू। the kind of courage you showed is truly commendable and inspiring. और मैम एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी जो रियल बुआ है वो हिसार में ही रहती हैं, तो मैं Okay. बचपन से वहाँ पे काफी आया हूँ हमेशा। अच्छा। तो जब मैंने ये चीज सुनी तो मुझे तो वैसे ही अपना लग रहा था कि जैसे मैं आपको जानता हूँ शायद पर्सनली, ऐसी फील आ रही थी। हो सकता है भी। थैंक यू मैम। थैंक यू। So, ma'am, our next panelist is Chaitanya Chauhan. So, please ask the question. ओके। Chaitanya, I guess there are some technical issues. So, अनम्यूटेड कर दिया मैंने, चैतन्य जी को होस्ट हैं, वीडियो भी ऑन है चैतन्य जी की। चैतन्य जी, please ask the question. Thank you for the recognition, Arnav. My name is Chaitanya Chauhan and I am currently serving as the head of Studio Retri Saharanpur. My question to you is, ma'am, what was your most memorable climbing trip? ओके, है चैतन्या, जैसे सीरियसली नाइस क्वेश्चन। मेमोरेबल तो पूरी जर्नी थी, पर स्टिल कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट जो मुझे याद है वो ये है, जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसके साथ एक और पहाड़ है
थोड़ा सा दूर, जिसे बोलते हैं फेरी, उस माउंटेन का नेम है, और उसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की डॉटर, उसकी बेटी, ठीक है। मेरा ये मेमोरेबल मोमेंट ये है, मैं रोक है जिसपे मैं डेली सुबह 4 लीटर पानी लेकर अपने कंधों पर, अपने बैग में कुछ खाने का सामान लेकर, जैसे कुछ बिस्किट्स, सॉरी, और कुछ साथ में नमकीन हुआ, लेकर मैं चढ़ती थी, उस को क्लाइम करती थी, और उस पर बैठकर मैं उस फेरी से घंटों बातें किया करती थी। मतलब मैं ये मानती थी फेरी मुझे जवाब दे रही है, मेरे को तो जवाब नहीं चाहिए। मैं पता है मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं बहुत मतलब बातें अगर मैं करती हूँ ना तो मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो बस खुद मैं बोल रही हूँ और आगे वाला चुप बैठे, तभी तो मेरा ये टैडी मेरा बेस्ट फ्रेंड है ठीक है। तो मेरी ये मेमोरेबल, मतलब मुझे इतनी याद आती है ना अभी भी, काश मैं एक बार फिर से उस पत्थर पे जाकर उस फेरी से बात कर सकूं, मुझे ना बहुत रिलीफ मिलता था। तो ये है मेरा मेमोरेबल मोमेंट। अगर आप मेरी जर्नी का मेमोरेबल मोमेंट पूछना चाहते हो, कुछ रिस्की टाइप, कुछ एडवेंचरस सा मेमोरेबल मोमेंट, तो वो क्या हो सकता है, ठीक है, वो एक है, मैं कैंप 3 की तरफ जब बढ़ी थी, मैंने आपको बताया तूफान आया, तो उस तूफान में ना एक चाइनीज गर्ल थी। अभी क्या हुआ ना, वो मेरे से 2 क्लाइंबर आगे थी, और वो क्लाइम करते करते, ऐसे स्टेप क्लाइम होती है, क्लाइम करते करते ना वो नीचे एकदम ना अपना सिर ऐसे, हम लोग जब रेस्ट करते हैं ना तो हम अपना हाथ ऐसे पकड़ते हैं, रोप को अपने हाथ को पकड़ते हैं और अपना सिर उस पे ऐसे टिका देते हैं, यही हमारा रेस्ट होता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। उसने भी ऐसे किया, वो शायद ज्यादा थक गई थी, ठीक है। अभी 2 क्लाइंबर जो उसके आगे है, वो उसको आवाज देते रह गए, वो नहीं हिली और वो चली गई। जब मैं गई ना तो मैंने उनके ऐसे कमर पे हाथ लगाया, मैंने कहा ठीक, मतलब मैं उनसे पूछ रही आर यू ऑल राइट, ठीक है, मैंने उनके ऐसे तो इतने में तो वो पलटी मार जाती है, और उनका ना वहीं पर एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ अभी नहीं हुई, वो जब उन्होंने रेस्ट किया ना, वो उस बीच में ही हो गई थी उनकी डेथ, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस चीज की। तो जैसे वो पलटी मारती है ना, अब उसने कि यार ये क्या हो गया, मेरी वजह से हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। बट ये मजाकिया वाला बात है, अगर मैं बताऊं तो, मतलब ठीक है फनी वे में बताऊं तो मजाक है, बट वो मजाक नहीं था। उस वक्त तो भाई मेरे तो खड़े हो गए थे रोंगटे, मैं मेरा हो गया इस दुनिया के साथ, ये क्या है, एकदम से चली गई पता तो जाती कुछ ऐसा करने वाली है, रेस्ट नहीं लेना चाहिए था। मैं अपने माइंड में मेरे इतने थॉट्स आए ना, मतलब मैं इतना डर गई कि मैंने रेस्ट भी नहीं लिया उसके बाद से किसी मतलब रास्ते में, ठीक है। तो फिर मैंने मेरे शेरपा को कहा कि अब इनका क्या करें, तो बोले इनको ऐसे साइड में कर दो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, साइड में क्यों कर दो भाई, मैं धार्मिक लड़की, इंडिया हिंदुस्तानी हूं मैं, ऐसे नहीं साइड में। फिर हमने उन्हें उठाई उनकी डेड बॉडी को, मतलब अगर आपकी डेड बॉडी 70 केजी की है ना, इतनी बुरी तरह खून जम जाता है ना अंदर आपके, गरम गरम खून जम जाता है, आपकी बर्फ हो जाती है आपकी बॉडी कि वो 170 पहुंच जाती है। उस डेड बॉडी को हमने उठाया, उसे हमने साइड में रखा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल लिटा दिया। उनसे मैंने प्रे की कि आपकी जितनी भी जो थोड़ी बहुत भी एनर्जी बची हुई होगी ना, वो मुझे दे दो, और आपका सबमिट मैं करूंगी। तो ये मेरा मेमोरेबल मोमेंट है, मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ, हर जर्नी में नहीं डिस्क्राइब करती मैं इसे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा है यार, मतलब ये मैंने अपने मन की, अपने दिल की खुशी के लिए किया था। मैं टॉप पर जब जाती हूँ ना, तो मैं आपको बता रही थी, मैं सबसे पहले गन्नू मामू को निकालती हूँ, फिर मैं एक कदम रखती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ, और उस कदम पे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी, ये मैंने उस लड़की का सबमिट किया है, ये उसी के नाम करना, उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होती और मेरी ऐसे डेथ हो जाती ना, मेरी तो आत्मा मंडराती रहती वहां पर, मेरे मन में इतना जुनून था माउंट एवरेस्ट का, तो उसमें भी तो होगा ना यार, उसका भी तो सपना था। तो मैंने उसको वहां पर सबमिट किया, और मैंने प्रे किया कि भगवान जी उसकी आत्मा को शांति देना, वो जहां पर भी है ना बस सब अच्छे से रहे, और उसे कह देना, कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचा देना कि मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने अपना सबमिट किया। ये था मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। Listening to your experiences truly excites us also. What a memorable indeed. And also listening to your inspirational and motivational thing, we have really been a great fan of yours. Thank you, ma'am. थैंक यू। So our next panelist is Astha Jain. So please Astha, ask your question. We can't hear you. Astha, please unmute yourself.
Thank you, Arnav. Good afternoon, ma'am. Myself, Astha Jain. I'm social media handler of Turowords. My question for you is, what final piece of advice would you like to give to all the newbies and people who face such stereotypes, categorization in their lives? यार देखो, मेरी तरफ से तो यही है, पॉजिटिव रहो, इतना पॉजिटिव रहो ना कि आगे वाला बंदा दुखी होते हुए भी ना आपको देखकर खुश हो जाए। इतना पॉजिटिव रहो, ठीक है? एक बार लाइफ मिलती है, जीना इसे कैसे भी करके। दुख है अगर हमारे डाउन है ना, हमें उसे भी इंजॉय करना है, हमें उसे इतना इंजॉय करना है कि वो अप हो जाए। तो मेरी तो ये पीस ऑफ एडवाइस यही है, ये वक्त है, गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, वो भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजरना ही है, ठीक है? गुजरता वक्त है, लेकिन खर्च हम होते हैं, ठीक है? ये बात तो हम फिल्मों में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सच है। तो बस हमें ना जीना है कैसे भी करके, कोई भी खुशी मिले हमें, बस उसे, अगर इतनी खुशी है ना, तो जब हमारे पास आ रही है ना, वो तो उसे इतना कर दे हम, इतनी पॉजिटिविटी आनी चाहिए हमारे अंदर। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, कोई भी चीज है ना, अगर मुझे पता है मैं नहीं भाग पा रही ना, तो खुद से झूठ मत बोलो। मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं नहीं भाग पा रही, अपना स्टेमिना बढ़ाती हूँ और फिर भाग के दिखाती हूँ। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ और मेहनत करके फिर उसे कर देती हूँ। तो एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर एक्सेप्ट करना सीख जाओगे आप सब लोग, या मैं भी, मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक इस चीज को अपना रही हूँ, आप सब भी अगर एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना, कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके पेरेंट्स को भी ये चीज सिखाओ, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट, अगर आपने सच्चाई एक्सेप्ट करनी सीख ली ना, आपने अपनी जिंदगी जी ली, साधु बाबा बन गया आप। तो ये मेरी पीस ऑफ एडवाइस तो यही है। थैंक यू सो मच आस्था फॉर द वेरी नाइस क्वेश्चन। Truly an inspiring answer, ma'am, and a lot of motivation for the newbies. Lovely, lovely answer, ma'am. I would like to quote one of your lines which says, "A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work." That was an amazing session. Amazing, amazing. And now I would like to invite our founder, Mr. Khalid Sajaria, to extend the vote of thanks. शिवांगी जी, कैन यू हियर अस? यस, ओके, श्योर मैम। थैंक्स लॉट मैम। और ये सेशन हम लोगों का इतना अच्छा रहा, मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी ऐसा हम सबको लगा कि आज जो हमारे साथ 100 व्यूअर्स इस मीटिंग में जुड़े थे और साथ के साथ फेसबुक लाइव भी हमारा सेशन चल रहा था, तो उन सबके लिए सिर्फ ऐसा लगा कि सिर्फ आपने एवरेस्ट नहीं चढ़ा, साथ के साथ आज पिछले 1-1.5 घंटे में हम सब एवरेस्ट चढ़ गए। वो 60 घंटे की जो 60 दिन की जो जर्नी है, वो हम सब ने 1 घंटे में पूरी कर ली। और आपका एक एक जो एक्सपीरियंस आप बता रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि हम सब उन मोमेंट्स को साथ में लिव कर रहे हैं। हम सब उन मोमेंट्स में खुश हो रहे थे, खिलखिला रहे थे। और सिर्फ मैं नहीं, सारे जो जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, सबने वो चीज फील करी कि जो जो चीजें आप बता रही थी ना, हम सब वो चीजें फील कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपने सही बात करी कि आप गॉड की फेवरेट चाइल्ड है, जो आपकी एक एक चीज हम सब आपके साथ इवन डिजिटल मीडियम से भी फील कर पा रहे थे। जो जज्बा, जो मोटिवेशन आपने हम सभी को दी है, वो वाकई ऐसी है कि उसका कोई सानी नहीं है। और अगर आप चैट बॉक्स खोल के देखें तो ऐसा लगता है कि 5 से 6 लोग अब इसके बाद एवरेस्ट चढ़ने का सपना बना चुके हैं। जैसे आपका सेमिनार वाला मोमेंट हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी काफी लोग अब एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। जरूर उन्हें साथ में लेके जाइएगा। और इन्हीं में साथ में हमारे कुशागर बस्ती जी हैं, स्टूडियो शेफ के, जो पिछले 2-3 महीने से कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। वो जरूर आपका अगली ट्रिप पर साथ देंगे, खाना बनाने में साथ में आपके लिए तैयार करते रहेंगे। और एंड करने के पहले मैं एक बार स्नेहिल देसाई जी को बस इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे मेंटर हैं, वो एक बार बस गाइडिंग वर्ड्स दें और फिर वी वुड एंड दिस सेशन फॉर्मली। थैंक्स अ लॉट मैम। सेम हियर। एंड वन, ओके, हाँ, नमस्ते। आज मैं अपने आप को ही बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इतने यंग टैलेंट से वार्तालाप करने का मौका मिला, क्योंकि शिवांगी जी जो है, चाहे उम्र में हम सबसे, मतलब मेरे से कम होगी उनकी उम्र, लेकिन उनका जज्बा जो है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी सलाम देने लायक है। और इसी तरह आप कुछ ना कुछ आगे करते रहिए। और मैं तो बोलूँ, आप अपना रिकॉर्ड बार बार तोड़िए माउंट एवरेस्ट का। और एक दिन ये और आपसे इंस्पायर होके हम लोग
जितने भी लोग आज सेशन जो अटेंड कर रहे थे उसमें से अगर 2 जनों ने भी ये चीज आपसे इंस्पायर होके अगर कुछ इसमें कुछ किया, माउंट एवरेस्ट तो छोड़ो कुछ भी, क्योंकि हर एक जैसे हर एक इंसान का जो सक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं स्टोरी, चाहे उनकी सक्सेस की चीज अलग रहती है लेकिन उनकी जो इंस्पिरेशन स्टोरी रहती है वो सेम ही रहती है। तो मेरी यही उम्मीद है कि मुझे भी आपसे बहुत सारी चीजें जानने को मिली, सीखने को मिली, तो मैं भी अपनी लाइफ में इसको, जो आपने पॉजिटिविटी की बात की, वो सबसे जरूरी है आज के जमाने में कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, दैट्स इट, क्योंकि उसके अलावा कोई और अपने पास ऑप्शन नहीं है, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो बहुत अच्छी बात कही, और जल्द ऑफलाइन भी हम लोग कुछ अच्छी चीजें करें, ये मेरी उम्मीद है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी मैम, आप कुछ कह रही थी एंड करते टाइम? मैं यही कह रही थी कि जैसे भी आपने कहा ना कि माउंट एवरेस्ट के लिए लोग सोचने लग जाते हैं, मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मुझे ना कई बार ऐसे महसूस होता है कि आई एम नॉट द इन्फ्लुएंसर, ठीक है, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ और आप मुझे देख के इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि हम भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज नॉट एवरीथिंग। मैं अगर इतनी पॉजिटिव हूँ doesn't mean because I climbed Mount Everest that's why I'm that kind of positive girl and that's why I have that kind of inspiration and motivation and thoughts। नहीं, ये तो मेरे में है, ऑलरेडी है। हाँ, उसको करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया है मुझ में, वो अलग चीज है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग अपने आप को जिस फील्ड में खुशी मिल रही है ना, जिस फील्ड में आपको, उसके माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना है आपने। मुझे खुशी मिली, अब जैसे कि इस वक्त मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है, मुझे कुकिंग में, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, मुझे कुकिंग थोड़ी अच्छी लगने लगी है, तो अभी मुझे उसमें बहुत अच्छा होना है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, आपको उसी में ही माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाइयों को क्लाइम करना है। और दूसरी बात, this is not for the girls, only for the girls, this is also for the boys and for all, मतलब all the viewers that जो मुझे मतलब इस वक्त they can view me, ठीक है, उनके लिए ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो चरित्र है, उसे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा रखोगे ना, अपने थॉट्स को, तो आप माउंट एवरेस्ट क्या, आप लोग उससे भी कोई बड़ी चोटी है ना दुनिया की, उसको भी क्लाइम कर लोगे। तो मेरा मानना यही है कि अपने कैरेक्टर को, अपने थॉट्स को माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा रखना है, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जिंदगी में जीने से और आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। That's it. Thank you so much. मतलब मैं अब थोड़ा चैट सेक्शन ऑन करती हूँ। अब मैं एक बार रीड करती हूँ, मुझे भी मजा आ रहा है। ओके ओके ओके। चैट सेक्शन में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। Yeah, Sijaria ने किया, congratulations ma'am for this success and thank you for inspiring us with such good session. Okay, thank you. ठीक है ठीक है। चैट सेक्शन में आपको काफी सारे होने वाले एवरेस्टर मिलेंगे। Exactly, there is a person, a boy, देवांग रस्तोगी करके, मैम अब मैं हरिद्वार के माउंटेन चढ़ूंगा। That's very good spirit. मैम वो हमारी टेक्निकल टीम का हेड है देवांग। Okay. मैं शायद से टेक्निकल टीम के मेंबर को बाय बाय करना पड़ेगा। A person Sijaria who said, who even wrote कि मैम मैं भी जाऊंगा एवरेस्ट। श्योर, पक्का जाना तुम। ओके, देवांग रस्तोगी का है, मैम को हाइट से डर लगता है। सिजारिया सर जो है ना, यही है होस्ट जो भी आपसे बात कर रहे थे। ओके भाई है मेरा। ठीक है मैम, मेरे को हाइट से डर लगता है, टंकी पर चढ़ के डर जाता हूँ। देवांग रस्तोगी। देखो, डर होता है ना, वो हमारे दिमाग में होता है सिर्फ और सिर्फ, बाकी आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो तो, ठीक है। तो फिर डरना नहीं है, चाहे पहाड़ है, चाहे पानी है, चाहे लाइफ है, चाहे आग है, चाहे कुछ भी है, डरना तो है ही अपन ने। डरे जहां डर जाएंगे वहां रुक जाएंगे, और रुकेंगे क्यों, लाइफ में रुकने थोड़ा है। ओके ओके ठीक है।
खाना पकाना अच्छा लगता है। ओके, राजेश चौहान को भी खाना पकाना अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मतलब इतने सारे थैंक यू मतलब मैम। ब्लेसिंग्स हैं ये मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। Thank you, ma'am. With this, I would like to formally end the session. Thank you, everyone. ओके, बाय एवरीवन।